Hi everyone, so guys, hope you all are good. So guys, in this video I am going to explain about HR domain data, especially related to the turnover ratio or attrition ratio. So guys, if you are looking to develop your skills in Power BI, then please watch this videos. It will be very helpful for you. Okay? So without wasting time, and one more thing, in this video you will learn about, like, you will understand how live Power BI project happening, like how we work in the live project of Power BI. Okay, so this is same scenario. This is the same scenario which I developed for my client. So I was working for my client and I got stuck somewhere in calculation of turnover ratio or attrition ratio. So I'm going to explain each and everything related to the turnover ratio, how, where I stuck, and how did find the solution. How did I find the solution? Okay, now without wasting time, let's move on to my Excel file. So Excel file में here you can see that I have created this data set, this dummy data set from myself. तो ये डेटा सेट में क्या हो रखा है, मेरे पास डेट है, हेड काउंट है, टर्मिनेशन काउंट है. तो एक्चुअल में मेरा सिनेरियो क्या था, in actual we have a employee data in which we have a some column in which like date of joining and everything and date of termination. So on the basis of employee table, I have calculated the total head count number and also total termination count number. ठीक है, if you want that formula then please comment in this videos. I will make a separate videos on these two calculation, but in this video I am going to talk about turnover ratio, not head count and termination count. ठीक है, ओके. तो क्या हो रहा था, हर एक डेट के बेसिस पे क्लाइंट्स नीड्स एक्यूरेट डेटा. तो एक्यूरेट डेटा अगर क्लाइंट्स को चाहिए था, तो अब मुझे क्या करना था, क्लाइंट वांट्स कि अगर मैं कोई भी पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट कर रखा हूँ, लेट मी मूव टू द पावर बीआई. पावर बीआई में मैं एग्जैक्टली सेम डेटा को रेप्लिकेट कर रखा हूँ, इंपोर्ट कर रखा हूँ. इंपोर्ट करने के बाद क्या है, ऊपर में एक डेट रेंज का स्लाइसर चाहिए था क्लाइंट को, और उसके बाद क्या चाहिए था कि ही वांट्स टू सी द एट्रिशन रेशियो और यू कैन से टर्नओवर रेशियो, नॉट नॉर्मल कैलकुलेशन. नॉर्मल कैलकुलेशन में आई मीन कि नॉर्मल कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग द टर्नओवर इज नॉर्मल, टेक द टोटल टर्मिनेशन काउंट एंड डिवाइडेड बाय एवरेज हेड काउंट. So this is the normal calculation, normal fundamental calculation about the attrition ratio or turnover ratio. But there is something different requirement of the my client, क्योंकि client मेरा थोड़ा advance है, you can say, just I am joking. ठीक है, now so what's happened, let's say for month of January, यहाँ पे अगर date range my client has been selected from January to December, तो जनवरी मंथ के लिए क्या होना चाहिए, this should be actual termination number, that is 11, divided by actual head count, that is 1039. So it should give you like 1.06. this should be attrition ratio for January. But अगर जैसे ही मैं फरवरी में मूव कर रहा हूँ, तो फरवरी में it should be cumulative termination count. Cumulative termination count mean कि this 1.33, this should not be 1.33. वाई, क्योंकि 1.33 एक्चुअल मेरा टर्नओवर है, मतलब 14 डिवाइडेड बाई 1049 है. बट दिस शुड नॉट बी 14 डिवाइडेड बाई 1049. दिस शुड बी 11 प्लस 14, मतलब क्यूमुलेटिव नंबर. क्यूमुलेटिव हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस कि क्यूमुलेटिव कैसे कैलकुलेट होता है. अगर नहीं जानते हो तो इन दिस वीडियो यू विल लर्न अबाउट क्यूमुलेटिव एज वेल. ठीक है, तो क्यूमुलेटिव में क्या हो रखा होगा, हर एक रो वाइज हम लोग डेटा मंथ वाइज ऐड करते जाते हैं. 11 प्लस 14 दैट इज 25. फरवरी मंथ में जो नंबर मुझे दिखना चाहिए वो 25 दिखना चाहिए, और जो डिनोमिनेटर दिखना चाहिए दैट शुड बी एवरेज ऑफ दिस 1039 एंड 1049. ठीक है, तो यहाँ पे फरवरी में मुझे जो नंबर दिखना चाहिए था वो दिखना चाहिए था 25 डिवाइडेड बाई आई थिंक 1039 1049 का अप्रोक्सीमेटली 1044 के अप्रोक्स आएगा एवरेज. तो दिस शुड नंबर 25 डिवाइडेड बाई 1044. ठीक है, तो ये नंबर मुझे दिखना चाहिए फरवरी में. एंड वन मोर थिंग, अगर एक परसेंटेज तो दिखना ही चाहिए था, एंड आई मीन माई क्लाइंट वांट्स एक्चुअल नंबर, average head count number and cumulative turnover number in tooltip. This is the main problem, क्योंकि यहीं पे मैं स्टक हो गया था. क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आई विल एक्सप्लेन लेटर. तो अभी जो भी मेरा न्यूमरेटर कैलकुलेशन जो भी हो रखा होगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में, वो सारा कैलकुलेशन उसे टूल टिप में चाहिए था. एंड वन मोर थिंग कि ये स्टैटिक होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि मैं जनवरी का ही डेटा सेलेक्ट करूँगा. इट डिपेंड्स ऑन मी.
अगर मैं फेब्रुवरी का डेटा सेलेक्ट कर लिया तो इन द फेब्रुवरी मंथ व्हाट शुड इट बी, इट शुड बी फेब्रुवरी में इट शुड बी एक्चुअल नंबर, लाइक व्हेन आई विल सेलेक्ट दिस फेब्रुवरी, लेट मी सेलेक्ट दिस फेब्रुवरी। सो फेब्रुवरी मैंने सेलेक्ट किया तो अभी फेब्रुवरी में क्या होना चाहिए, व्हाई इट इज़ नॉट फिल्टरिंग, जस्ट अ सेकेंड, ओह let me take that data from this dim calendar. Okay, now let me select from February, let me select the date from February. तो when I am selecting February, तो February में क्या होना चाहिए मेरा नंबर जो 1.33 आ रहा है, this should be like actual number. February अगर कोई भी मंथ मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो फर्स्ट मंथ should be actual number, मतलब February में 14 divided by 1049, that is simple. But प्रॉब्लम क्रिएट्स आफ्टर द फर्स्ट मंथ, फर्स्ट मंथ के बाद प्रॉब्लम क्या होगा, अगर मैं मार्च में मूव करूं तो दिस शुड बी फेब्रुवरी प्लस मार्च इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में एवरेज ऑफ फेब्रुवरी हेड काउंट एंड मार्च हेड काउंट। आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। अगर आप प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर चुके हो तो वीडियोज को पॉज करना एंड ट्राई टू डेवलप दिस एनालिसिस फ्रॉम योर सेल्फ, ठीक है। नाउ let me move to the solution part. I think you have understand by the points what I am trying to build up or what my client's requirement was, ठीक है। now अभी क्या करूँगा मैं, मेरे माइंड में फर्स्टली क्या my like what I thought at that moment when I got this requirement from my client, I thought let's develop first numerator and then first denominator and then I will divide both the number। तो क्यूमुलेटिव के लिए मेरे माइंड में क्या आया था, this is the attrition ratio. So firstly let me write the query like DAX formula, not query, क्योंकि SQL करते करते मुझे query माइंड में हिट करता है, ठीक है। तो let me firstly write the DAX expression for cumulative turnover, ठीक है, सॉरी नॉट टर्नओवर, टर्मिनेशन। तो गाइस हम लोग जानते हैं क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि पहले मैक्सिमम डेट लेते हैं एक में, तो लेट मी टेक वेरिएबल ऑफ मैक्स, व्हाट्स हैपनिंग गाइस, मैक्स ऑफ डिम कैलेंडर डेट, ठीक है। अब मैं डिम कैलेंडर डेट ले लिया एंड आई विल रिटर्न कैलकुलेट लाइक टोटल टर्मिनेशन डिवाइडेड बाई, आई विल फिल्टर टेबल एंड आई विल यूज ऑल, I will not use all, I will use all selected. Let me zoom this bit larger, ठीक है। all selected it should be actual data HR and then I will write HR date should be less than equals to A, ठीक है। let me what's happened, parameter is not correct type, oh all selected HR should be close here, ठीक है। अभी let me रिटर्न दिस। तो गाइस अगर मैं इसे रिटर्न करूं एवरेज क्यूमुलेटिव टर्नओवर, दिस इज माय क्यूमुलेटिव। तो अभी आप देख रहे होगे क्यूमुलेटिव जो मेरा कैलकुलेशन है वो 14 + 28 + 14 45, व्हाट आई एक्सप्लेन्ड अर्लियर, इट इज गिविंग माय एक्चुअल लाइक क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन, बट लेट मी पुट दिस इन टूल टिप, प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग इन टूल टिप गाइस। अभी यहाँ पे आप टोटल टर्मिनेशन का नंबर दिख रहे होगे, अभी टोटल टर्मिनेशन के बदले में यहाँ पे लेट मी रिप्लेस दिस क्यूमुलेटिव टर्नओवर, ठीक है। अभी क्या हो रखा होगा, जस्ट एज्यूम गाइस, अभी क्या हो रखा होगा, ये ऑल सेलेक्टेड जो मैंने डैक्स एक्सप्रेशन यूज कर रखा है दिस विल नॉट वर्क इन टूल टिप, वाई, क्योंकि ऑल सेलेक्टेड जो मेरा डैक्स एक्सप्रेशन होता है वो डिपेंड्स ऑन जो भी विजुअल पे जो लेवल पे जो लगा हुआ है फिल्टर उस पे कार्य करता है। अभी यहाँ पे देखो तो मैं जनवरी के लिए दोनों बोथ नंबर आर सेम, बट फरवरी के लिए भी actual and cumulative are giving same results, not giving my 28 which is visible in table. Let me zoom this bit larger. तो अभी आप देख सकते हो क्यूमुलेटिव से मुझे अगर मैं टेबल में डेटा डाल रहा हूँ तो इट इज गिविंग माई 28, बट टूल टिप में क्या हो रहा है, जो ऑल सेलेक्टेड फंक्शन है वो दिस इज नॉट वर्किंग। ऑल सेलेक्टेड के केस में क्या हो रहा है कि दिस इज नॉट like selecting February date, it's only assuming March date all selected में, ठीक है। तो I think I have explained about the concern where I stuck, and then let me move to the solution part. How did I find the solution of these queries, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो रहा था गाइस, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था टूल टिप में एक्चुअली इज टू लाइक इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स, क्यूमुलेटिव एंड देन एवरेज को डिवाइड करना, बट प्रॉब्लम इज वच क्रिएटिंग इन कैलकुलेशन ऑफ टूल टिप। तो टूल टिप इसके लिए गाइस मैं क्या फंडा अप्लाई किया, व्हाट आई डिड, आई क्रिएटेड अ
कैलेंडर 2 दैट इज एग्जैक्टली सेम एज ऑफ डिम कैलेंडर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कैलेंडर 2 मैंने क्रिएट किया है, कैलेंडर 2 इक्वल्स टू डिम कैलेंडर 2 एंड हियर यू कैन सी माय डिम कैलेंडर इज दिस। डिम कैलेंडर मैंने क्रिएट कर रखा है। यहाँ पे आप देखोगे एक वेरिएबल है मैक्स और मिन कोड। आई थिंक यू ऑलरेडी नो दिस, सो I am not going to explain this. I have also created one videos on calendar, how to create a calendar table. So if you want to see that videos, then you can. ठीक है, now let me move to this part, this solution. तो फर्स्टली क्या किया, मैं एक डिम कैलेंडर का टेबल क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब डिम कैलेंडर का टेबल क्रिएट करने के बाद मैं क्या किया कि अब मैं क्या किया, जो मैक्सिमम डेट है आई एम टेकिंग फ्रॉम दिस actual calendar, or in one variable I have taken minimum date, minimum from calendar 2. Where is my calendar pro? Yes, this is my calendar 2. तो calendar 2, अब मैं क्या किया, calendar 2 का minimum date लिया and maximum from actual calendar। अब यहाँ पे I am going to use another DAX. What is the another DAX? Dates between। ठीक है, तो let me use this dates between and let me remove this this filter। so dates between, firstly it's take 3 argument, तो firstly dim calendar date and it's asking about a start date, तो a start date should be B। क्यों B? क्योंकि B में मैं मिनिमम कैलकुलेट कर रहा हूँ and then A I let me execute this। ठीक है, and one more thing, this is from dim calendar 2, so I will not take from dim calendar 2, I will take this from calendar 2। ठीक है, तो यहाँ पे वो मैं हाइड कर रखा है, तो पहले मुझे व्यू हिडन करना होगा। ठीक है, एंड लेट मी पुट डेटा फ्रॉम दिस स्लाइस फ्रॉम दिस कैलेंडर। अभी क्या हो रखा होगा, अब देखते हैं, रिजल्ट पे पहले मूव करते हैं। अभी मेरा जनवरी सेलेक्टेड है, तो जनवरी में यू कैन सी आई एम गेटिंग एक्चुअल इन 11। in the month of February what I am getting cumulative, that is 11 plus a 14, 11 था इस मंथ में, 14 एक्चुअल है मेरा फरवरी में इन द टूल टिप यू कैन सी, तो 14 plus 11 that is 25। so I think we have achieved the solution what was the problem statement। so I think we are approximately approaching the solution part। तो अभी मेरा न्यूमरेटर का फंडा क्लियर हो गया है, तो व्हाट आई विल डू सेम थिंग्स फॉर डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर के लिए क्या करना होगा, मुझे एवरेज हेड काउंट लेना होगा। अभी मेरे पास हेड काउंट के लिए यहाँ पे डेटा में, लेट मी एक्सप्लेन द डेटा में क्या हो रखा है, हर एक डेट पे मेरा हेड काउंट है। ठीक है, अब जब आप मंथ ईयर सेलेक्ट करोगे तो व्हेन यू विल सेलेक्ट मंथ ईयर, so firstly you can decide it from yourself। firstly take data at maximum date। ठीक है, क्योंकि अभी जब आप लोगे डेटा तो अभी देखोगे नंबर थोड़ा डिफरेंट है। तो फर्स्टली व्हाट आई डिड, आई हैव क्रिएटेड वन मेजर फॉर मैक्सिमम डेट, लाइक टोटल हेड काउंट नंबर एट मैक्सिमम डेट। तो एक वेरिएबल लिया मैं, उसमें मैक्सिमम ऑफ टिम कैलेंडर डेट, ए ओरिजिनल कैलेंडर टेबल है, दिस नॉट माई सेकेंड टेबल। अब सम ऑफ HR हेड काउंट एंड HR डेट इक्वल्स टू A। क्यों A? क्योंकि अगर मैं डे वाइज भी देखना चाहूँ तो अगर मैं मंथ ईयर डेटा देखना चाह रहा हूँ तो मंथ ईयर में मेरे पास बहुत सारे डेटा आएंगे, तो दिस विल गिव मी एवरेज ऑफ ऑल द रिजल्ट्स। ठीक है, तो एवरेज मुझे नहीं चाहिए था, एट मैक्स और मीन चाहिए था, मतलब कि अगर मैं कोई डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ तो उस पर जो मेरा डेटा है उसको चाहिए था। तो इसलिए आई हैव यूज्ड दिस फार्मूला। पहले मैं हेड काउंट का नंबर एट मैक्स डेट कैलकुलेट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट अप्रोच वुड बी लाइक हाउ टू कैलकुलेट एवरेज हेड काउंट। तो गाइस एवरेज हेड काउंट के लिए मैं क्या किया, आई यूज्ड एवरेज एक्स फंक्शन। लेट मी राइट दैट क्वेरीज। ठीक है, एवरेज हेड काउंट, लेट मी नेम दिस एज न्यू। ठीक है, अभी सेम जैसे अभी अपन क्यूमुलेटिव टर्नओवर टर्मिनेशन काउंट में कर रहे थे वैसा ही, फर्स्टली लेट मी टेक मैक्सिमम फ्रॉम डिम कैलेंडर डेट एंड मिनिमम फ्रॉम कैलेंडर 2, जो डुप्लीकेट वाला टेबल है जिसका मैं स्लाइसर यूज कर रखा हूँ। ठीक है, एंड लेट मी रिटर्न कैलकुलेट रिटर्न करूँ, बट नंबर शुड बी एवरेज। तो एवरेज के लिए गाइस आई विल यूज एवरेज एक्स फंक्शन। गाइस एवरेज एक्स क्या करता है, पहले आपको एक
दो आर्गूमेंट लेगा। फर्स्ट आर्गूमेंट इज टेबल। तो टेबल में मैं क्या कर चाहता हूँ कि एक मुझे टेम्परेरी टेबल क्रिएट करके दे, किसका, मंथ ईयर का, क्योंकि ये मुझे जो एवरेज लेनी है वो मंथ ईयर वाइज लेनी है। जैसे अर्लियर में इस वीडियोज का स्टार्टिंग में मैं एक्सप्लेन किया कि जनवरी में इट शुड बी एक्चुअल हेड काउंट, बट व्हेन आई एम मूविंग टू फरवरी इट शुड बी जैन प्लस फेब डिवाइडेड बाई 2, मतलब एवरेज। ठीक है, जैसे 1049 और 1039 का एवरेज मैं बोला था 1044 के अप्रोक्स आनी चाहिए। तो दिस शुड बी एवरेज नंबर इन ईच सक्सेसिव मंथ। ठीक है, फर्स्ट मंथ में क्या होगा, एवरेज एंड एक्चुअल नंबर्स वुड बी सेम, बट इन द सेकेंड मंथ एवरेज वुड बी शिफ्टेड अप और डाउनवर्ड फ्रॉम द प्रीवियस मंथ, डिपेंड्स ऑन द करेंट मंथ वैल्यूज। ठीक है, तो आई एम यूजिंग दिस एवरेज एक्स। एवरेज एक्स मुझे दो आर्गूमेंट लेता है, फर्स्ट आर्गूमेंट इज टेबल। तो आई एम I am going to create this temporary table in values. Values क्या करेगा, मुझे distinct of month year लेगा पहले, and then let me use head count at max. अभी यहाँ पे एवरेज एक्स मेरा बंद हो चुका है, मतलब एवरेज एक्स अंदर की यहाँ की तक की टैक्स की बात करूँ, यहाँ तक टैक्स मुझे क्या कर रखा होगा कि पहले मंथ ईयर का एक वैल्यूज लिस्ट तैयार करेगा, एंड देन उस मंथ ईयर के बेसिस पे जो हेड काउंट का मैक्सिमम वैल्यूज होगा, हेड काउंट का जो वैल्यूज होगा एट मैक्स, जनवरी के लिए क्या होगा 31 जनवरी को जो मेरा मैक्सिमम वैल्यू होगा, फरवरी के लिए क्या होगा 28 फेब को, अगर 2022 का है तो 28 फेब को जो मेरा हेड काउंट का डेटा होगा वो, एंड देन इट विल क्रिएट अ लिस्ट, और यू कैन से इट विल क्रिएट अ टेम्परेरी टेबल। इन वन कॉलम इट वुड बी मंथ ईयर, इन अनदर कॉलम इट वुड बी हेड काउंट नंबर। अब उसका एवरेज एक्स लेगा, डिपेंड्स ऑन द सिलेक्शन। ठीक है, तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द सिचुएशन। And in the calculate in the filter what I will use, in the previously we were used dates between in cumulative of termination count, so here I will use the same. So dim calendar date and then mean, mean is I think B and then A. ठीक है, let me like close this. अब यहाँ पे मुझे execute करने दो। तो अब जैसे ही मैं execute किया, लेट मी पुट दिस एवरेज हेड काउंट हेयर। अभी तो अपन देख लें क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन सही हो रखा था। ठीक है, लेट मी डू दिस टू अ स्मॉल। ठीक है, अभी टर्मिनेशन तो मेरा सही रिजल्ट दे रहा था, तो इसलिए मैं इसे हटा दिया। अभी एक्चुअल हेड काउंट की जगह पे आई विल पुट एवरेज हेड काउंट। आई थिंक दिस इज द एवरेज हेड काउंट। ठीक है, नो अभी चलते हैं अपने साइड में। अभी यहाँ पे देख रहे होगे कि जो मेरा फर्स्ट मंथ के लिए है, जैसे मैंने अर्लियर में एक्सप्लेन किया, इट इज गिविंग माई 1039 1039। सेकंड, लेट्स मी मूव टू द सेकंड। सेकंड में क्या हो रहा है गाइस, आई थिंक वी अचीव्ड द सॉल्यूशन। जनवरी में क्या हो रखा था 1039। लेट मी ओपन माई कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर, वेयर इज द कैलकुलेटर, या सो दिस इज द माई कैलकुलेटर। अभी जनवरी में क्या रखा है, क्या हो रखा है, मेरा हेड काउंट नंबर इज 1039। ठीक है, अब फरवरी में क्या हो रखा था, एक्चुअल नंबर इज 1049 इन द टॉप ऑफ टूल टिप, हियर यू कैन सी। तो 1049, दिस इज माई फरवरी वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, सो इट्स गिविंग माई 1044 एंड विच इज शोइंग इन टूल टिप। let me do this bit larger, या तो अभी आप देख सकते हो जो मेरा एक्चुअल नंबर है वो फर्स्ट मंथ के लिए सेम है, एंड सेकंड मंथ के लिए वो मेरा एवरेज नंबर आ चुका है। सो आई थिंक वी हैव अचीव्ड द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। सो फाइनली व्हाट आई विल डू, in the turnover ratio I will in the attrition ratio what I will do, I will replace this total termination by like cumulative termination and head count at max by average head count new। ठीक है, तो where is the average, average, yeah this is the my average head count new। अभी जैसे मैं एक्सप्लेन जैसे ही इसे लाऊं यहाँ पे, what's happening, why it is giving me blank, let me remove this blank। ठीक है, नाउ अभी जैसे ही मुझे ब्लैंक नंबर दिखा, अब उसे मैं, अब यहाँ पे देखो जनवरी के लिए क्या हो रखा है, मुझे 1039, एवरेज एंड एक्चुअल इज सेम, क्यूमुलेटिव इज 11। टेबल में भी आप देख सकते हो फरवरी में जो एट्रीशन कैलकुलेट हो रहा है वो 25 डिवाइडेड बाई 1044 हो रहा है। क्यों, अभी लेट मी शो यू। यहाँ पे 25
25 divided by 1044. This will gives us 0.2. अगर इसे 100 से मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 82.39 देगा, which is exactly same as in my tooltip. So I think this is the end of this videos. I am assuming you have understand my concern and you have understand my solution. How did I achieve the solution? So I think this is overall of this videos, and also I have created yeah, so this is same as of this. So I think this is the end of this videos. Thanks guys, thank you for watching these videos. We'll meet in next video. Jai Hind.